Hi, good evening, everybody. So, good evening. So I know that it's quite late, and I'll try to keep it very precise in terms of what we are supposed to discuss today. And like ma'am told, I'll be taking certain questions of polity and governance as well. तो अभी हम लोग सिर्फ एक या दो क्वेश्चन जितना भी होगा, we'll see how the response comes, and then eventually we are going to take it tomorrow. ठीक है? नहीं ऊपर ठीक है. So I'll just give a brief introduction about myself, and then we'll start the discussion. So I am Kaukab Usmani, and I'm a lawyer as well from Faculty of Law, Delhi University, and I've been teaching over here General Studies too. So let's first get to this particular question, and I'll just give you a brief कि कैसे थोड़ा सा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, how is it going to be a bit the stages of discussion. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आ रहा है, what exactly, how we can understand the basis of that particular question. ठीक है. So the key thing that we are supposed to know is the previous year question. Previous year questions are the source of understanding what all the questions have been coming in the UPSC. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, द क्वेश्चन दैट वाज देयर ओवर हियर, हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड, assess the role of National Legal Services Authority NALSA in rendering free legal aid in India. ठीक है. So we already have read on so many occasions कि भाई आर्टिकल 39A है जो एग्जिस्ट करता है. आर्टिकल 39A talks about the free legal aid, but that is not the question. Knowing the points is one thing, but how can you actually predict this question? What was the source of that particular question? तो देखिए 2023 में एक मॉडल प्रिजन्स रिफॉर्म करके आया था. सो बेसिकली इट वाज इन न्यूज. और ये जो नालसा वगैरह है, इसका मकसद क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन व्हाई दिस नालसा इज इन द वेरी फर्स्ट प्लेस? सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू रीड आर्टिकल 39A, इट वेरी स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट फ्री लीगल जस्टिस टू ऑल. तो पहला सवाल उठता है कि भाई हु एग्जैक्टली आर द पीपल हु आर बेनिफिशियरी ऑफ this particular article. So that should be the first question that should be coming to your mind. Usually we do not delve deeper into knowing कि ये all में कौन कौन आएगा. So the UPSC wants you to be more inquisitive in that aspect. तो पहली चीज तो वो. और दूसरा चीज ये कि भाई आपको जरूरत क्यों पड़ रही है इस लीगल सर्विस की इन द वेरी फर्स्ट प्लेस? Who exactly can be those people who are being provided, and what exactly was the context that this NALSA came in the very first place? So we need to have an understanding of that as well. अगर थोड़ा सा भी आप common sense या थोड़ा सा भी आप presence of mind show करेंगे, तो the question is not very difficult. Having said that, ये हमेशा post mortem कर रहे होते हैं, तो it's easier said than done. But then थोड़ा सा analytical skills I'm going to bring into the whole discussion so that you have an understanding कि how this question could have been solved. तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि जो भी प्रिजन्स में हमारे इश्यूज चल रहे होते हैं या पुलिस में हमारे जो इश्यूज हैं, पुलिस रिफॉर्म्स, प्रिजन रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें जो रिक्वायर्ड होती हैं, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक पार्ट होता है. So it is a component of the criminal justice system, and lot many efforts are being taken in the past few years to bring about reforms in these three segments. At many times you must have read about the e-court project that is being carried out. Judiciary में बहुत सारे reforms लाए जा रहे हैं. There is steps being taken to integrate all these three components to ensure that हमारा एक seamless criminal justice system create हो, जो हमारा data prison में है, पुलिस से connect हो, पुलिस का judiciary से connect हो, और एक तरीके से एक triad बन सके. इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रिजन्स. अगर आपको प्रिजन्स के बारे में पता रहे कि भाई प्रिजन्स में हो क्या रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज लाइंग डाउन इन द प्रिजन्स, सो वी फाइंड दैट विद द राइज इन द नंबर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस, lot many people are languishing in the prison, and India has one of the largest numbers of under trials in the world, which is actually a human right problem. Human right issue है ये, है ना? तो इसको हम लोग एक ह्यूमन राइट इश्यू से कनेक्ट करके पढ़ेंगे. यूपीएससी का क्या है ना, उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक करना बहुत जरूरी है. आइसोलेशन में अगर आप चीजों को पढ़ेंगे तो यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व यूपीएससी के क्वेश्चंस. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम टू a conclusion over here, that in order to solve these questions, you first need to understand that who exactly are those people who are languishing in the prison.
who exactly are those people who are actually that component of large under trials who are having those human right issues. अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन अगर आपने पहले नहीं भी देखा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु आर इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड. सबसे पहली बात तो ये कि फ्री लीगल एड क्यों चाहिए. तो फ्री लीगल एड इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा जो लॉयर टू पीपल का रेशियो है, इवन दो देयर आर नंबर ऑफ लॉयर्स बट they are quite expensive and it is not possible for all of them to have access to those lawyers. तो पहला तो लॉजिक यही कहता है कि भाई चलो कुछ ऐसे लोग हैं who are not that privileged, who are not having access to those many resources, so it is imperative on the part of the state to ensure that they do not that they have access to justice also in the very first place. तो पहली चीज तो ये. दूसरी चीज, लोगों में लीगल अवेयरनेस की काफी कमी है. We find that people, even though they know in terms of the situation that they have been put in, they do not have legal awareness. Section 436A of CRPC talks about that, है ना. तो अगर आपको ये सब पता चले कि vulnerable sections के बारे में अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए और उसको social justice से जोड़ करके अगर आप पढ़ सकें, तो this question, the first part at least, the part of it can be solved. ठीक है. तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं तो हाउ आर वी गोइंग टू मेक दिस माइंड मैप. Any question UPSC, even if I dictate you the answer of this particular question, trust me, the next year some different question is going to come up and you're always going to be lagging behind the questions that are coming. The UPSC is always going to be a stage ahead of you. तो हमारे लिए जरूरी ये है कि हम थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग समझें कि यूपीएससी ने ये सवाल पूछा क्यों, कॉन्टेक्स्ट क्या है, करंट अफेयर्स में क्या न्यूज रहा है और उससे जोड़ करके हम कैसे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं. So that is the number one thing that we need to understand. So it is somehow an extension of question number 1. जुडिशरी से सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, विच मैम डिस्कस्ड विथ यू गाइज, है ना, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में और क्या क्या वो सारी चीजें हैं. उसी का एक एक्सटेंशन है कि भाई जुडिशरी में क्या इश्यूज हैं. तो कहीं ना कहीं जब आप इसको आंसर कर रहे हैं, अगर इनके इर्द गिर्द आप सोच सकें इन सारे पॉइंट्स के, जैसे क्या प्रॉब्लम ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं, पेंडेंसी और बैकलॉग्स, है ना. पेंडेंसी है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, मोर देन 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग. दूसरी चीज क्या है, बैकलॉग्स. इसकी वजह से क्या है, केसेस एक्सटेंड होते चले जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट, पीपल आर लैंग्विशिंग इन द जेल एंड प्रिसाइजली व्हाई वी हैव सो मेनी अंडर ट्रायल्स टू बिगिन विद. दूसरा, आप इसको ह्यूमन राइट इश्यूज के एंगल से भी देख सकते हैं. तो बेसिकली ये ह्यूमन राइट इश्यूज कैसे हो सकता है, भाई जो प्रिजन में बंद है, पीपल हु आर लैंग्विशिंग इन द जेल, they're also being subjected in some other capacity through custodial violence, custodial deaths के cases आप देखते हैं, custodial rapes के cases हैं. हम लोग देखते हैं कि suicide के cases inside the prison is at all time high. We find that people, we do not have sufficient data as to who exactly are those people who have been languishing in the jail. अगर हम data देखें तो इतना ज़्यादा frequent data हमारे पास नहीं है. We don't have access to all that data. So who exactly are the people who are languishing in the jail is also a very significant challenge that needs to be seen. So if you have an idea about these vulnerable sections of the people who can be scheduled caste, scheduled tribes, minorities, can be transgenders, can be women, children who are languishing in the jail, maybe people who are not having that many access to economic resources, those can be the people. आप एक broader picture बना सकते हैं even if you don't know the precise answer to this particular question, है ना. फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि preventive detention cases के मैटर्स हमेशा राइज पर हैं. करंट अफेयर्स में था मॉडल प्रिजन एक्ट, उससे जोड़ करके आप पढ़ सकते हैं. मीडिएशन और एडीआर, होता क्या है कि हमारे प्रिजन का जो ऑक्यूपेंसी है वो बेहद ज्यादा है, जितने की उसकी कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा लोग वहां पर हैं. इफ देयर इज अ कैपेसिटी ऑफ 100 prisoners, there are 120 prisoners, 115 prisoners who are in the prison. तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो हेल्थ, सैनिटेशन, सुसाइड, कस्टोडियल डेथ्स, कस्टोडियल रेप्स, कस्टोडियल मर्डर्स, हम लोग देखते हैं लोगों को लीगल अवेयरनेस नहीं है, उनके पास डेट्स एक्सटेंड होता चला जाता है और कई बार इवन दो जितने साल के लिए उनको सजा मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा वक्त तक वो जेल में बंद रहते हैं. तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मीडिएशन, एडीआर, लीगल लिटरेसी और इससे जुड़े हुए जो भी केस लॉज हैं. देखिए, दिस इज अ 10 मार्कर. You have to be very precise with your answers. You cannot be writing too much. There's going to be a temptation if you have prepared the topic. There's going to be a lot of temptation कि आप ज्यादा लिखें या अगर नहीं होगा तो आप वही general points लिखें. इनके बीच का एक बैलेंस बनाते हैं. आपका एक अच्छा आंसर वो होगा which is going to have case laws.
UPSC over a period of 3-4 years has been shifting towards the legal aspects of things. आप कोई भी previous year questions उठा करके देखेंगे, you will realize कि case laws की तरफ, judiciary के questions की तरफ ज्यादा shift कर रहा है, tilt कर रहा है. अगर आप prelims के questions भी अगर आप देखें, even if you look at the prelims question, we find that it's no longer Lakshmikant is no longer meeting the requirement of getting answers to all your questions. In that particular aspect, you need to have a balance between polity and legal, some legal information, case laws, ये सारी चीजों के बारे में आपको बैलेंस बनाना जरूरी है. तो अगर हम लोग देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इससे जुड़ा हुआ कौन सा क्वेश्चंस आ चुका है अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में भी ऐसा सवाल पूछा था, जहां पर ये बोलता है कि जुडिशियरी के साथ कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स को. ठीक है, और हम लोग और देखेंगे इवेंचुअली. तो हम लोग सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को यह समझना चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है प्रिजन की. ये आप लिखेंगे नहीं, एक माइंड मैप बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इमीडिएटली क्वेश्चन देखेंगे. यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द थीम, यू आर गोइंग टू हैव एन आइडिया अबाउट द कॉन्टेक्स्ट एंड यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर सब्सीक्वेंट आंसर बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो सबसे पहला कारण क्या है? ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्रिजन्स है, डिले इन द ट्रायल्स है. एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी 1979 का केस है. हम लोग देखते हैं कि इसमें जुडिशरी ने बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपका इस नालसा को इवॉल्व करने में. जस्टिस भागवती, जस्टिस कृष्णा अय्यर, these people, these judges, these ex-chief justices have played a very significant role in bringing about these entities like नालसा वगैरह लाने में इनका बेहद इंपॉर्टेंट रोल रहा है. तो इसी में हुसैन आरा खातून एक लैंडमार्क केस है. तो आपको हमेशा अपने आंसर्स में ना कोशिश करना चाहिए केस स्टडीज, केस लॉज, उनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल्स वो आप डालें. 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में, इट इज अ 10 मार्कर, you're supposed to have 150 marks to go about this particular question, so you need to be very succinct in terms of the answers that you're putting in. तो ये हुसैन आरा खातून का केस आप डाल सकते हैं. कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में डीके बसु का एक लैंडमार्क केस है. प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में जस्टिस अमिताभ रॉय और मुल्ला कमिटी, दो इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं. इफ एनीबडी हैज अटेंडेड द गवर्नेंस क्लास दैट आई हैव टेकन, तो अच्छा नहीं, जिन्होंने भी अटेंड करा है, एक बहुत ही एक्सटेंसिव केस लॉज जो भी जुड़े हुए हैं उसे मैंने लिखवा रखा है कि डीके बसु एक लैंडमार्क केस है, हुसैन आरा खातून एक इंपॉर्टेंट केस है. ठीक है, कस्टोडियल डेथ्स के मैटर्स हैं, विमेन एंड चिल्ड्रन जो है वहां पे लैक ऑफ सैनिटेशन है. ठीक है, इंडिया का अंडर ट्रायल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, और बहुत सारे लोगों को ये सेक्शन 436A के बारे में नहीं मालूम है. ये भी आप अपने आंसर्स में डालेंगे. सेक्शन 436A क्या कहता है? सेक्शन 436A ये कहता है कि अंडर ट्रायल्स को रिलीज कर देना चाहिए पर्सनल बॉन्ड पर if they have undergone half of the maximum term of the imprisonment they would have faced had they been convicted. अगर the punishment for having committed a crime was say 12 years, just giving you an example, section 436A ये कहता है कि भाई जो भी आपका मैक्सिमम imprisonment का टाइम है, अगर वो उसका आधा आपने सर्व कर लिया है, फॉर दैट इज 6 years if you have served, then that person should be released on personal bond. क्यों किया जा रहा है ये? क्योंकि हम सरकार की ये कोशिश होती है, अभी हम लोगों ने शिफ्ट भी किया है इंडियन पीनल कोड से रिहैबिलिटेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. तो वी आर गोइंग टू इनकरेज नॉट पीनल प्रोविजंस, वी आर इनकरेजिंग रिहैबिलिटेशन एस्पेक्ट. तो कम से कम लोगों को जेल में बंद करने की बात होती है. कई बार हाउस अरेस्ट के बाद को इनकरेज किया जाता है ताकि प्रिजन के अंदर जो भी लोगों का इंप्रिजनमेंट है उसको रिड्यूस किया जा सके. एंड हु आर दीज पीपल who don't even know, have legal awareness of section 436A? These are those people who are not having legal literacy. These are those people who are not having access to lawyers. These are those people who do not have sufficient resources to afford lawyers. These are those people who have to be supported by the state. Otherwise, they are going to end up languishing in the jail for the rest of their lives. है ना? तो these are those people जिनके लिए नालसा काम करती है. तो नालसा में बेसिकली होते कौन है? ये पैरालीगल्स होते हैं. पैरालीगल्स और लॉयर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना? क्लाइंट को वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है कोर्ट में, पैरालीगल्स, बट दे असिस्ट द लॉयर्स इन कैरिंग आउट द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स. तो जैसे होता है ना कि हर जगह डॉक्टर्स नहीं हो सकते हैं, तो आपके पैरामेड्स होते हैं, है ना? पैरामेड्स होते हैं जो कि सपोर्ट सिस्टम एक क्रिएट करते हैं आपका ग्राउंड पे. तो दीज आर दोज पीपल, एंड these are those people who have been put who are impaneled to ensure
कि लोगों की मदद करें, बट इनका बहुत ज्यादा इंसेंटिव नहीं होता है. दे डोंट अर्न एज मच एज दे कुड हैव अर्न इन द प्राइवेट प्रैक्टिस. ये मैं आपको कहानी बता रहा हूं ताकि आप इसके आंसर तक पहुंच सकें, दिमाग को कैसे यूज करना है, कैसे प्रिडिक्ट करना है, ये समझने के लिए. तो देखिए, एक डेटा अगर मैं आपको दूं तो 2016 में आउट ऑफ 1557 अंडर ट्रायल्स फाउंड एलिजिबल फॉर रिलीज अंडर सेक्शन 436A, ओनली 929 वे रिलीज्ड. 600 लोग अंडर ट्रायल्स हैं, इवन दो दे आर एलिजिबल टू बी रिलीज्ड. आपके आंसर्स में डेटा भी होना चाहिए. ये प्रैक्टिस से आएगा. When you are going to write more and more answers, your answers are going to become more, refined. और Amnesty International भी ये बोलता है कि prison officials are frequently unaware of this section and are unwilling to apply it. Even those people who are in charge of the prison, even they are also not too keen, यानी उनके अंदर sensitization नहीं है. People who are languishing in the prison, if I am the one who is in charge of the prison, at least if I have sensitivity towards the person who is there in the prison, I should be at least informing them. एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये रिलीज किया हुआ डेटा कहता है कि प्रिजन ऑफिशियल्स आल्सो आर अनअवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, तो अगर आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आया, इफ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, देन दिस क्वेश्चन कैन बी अंडरस्टूड. ऐसा नहीं है कि कहीं से ये क्वेश्चन आ गया. और हम लोग देखेंगे अपने सब्सिक्वेंट डिस्कशंस में a list of previous questions. We are going to form a pattern and we are going to have an understanding of things. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझने के लिए पहले क्या हम लोग करेंगे, पहले हम लोग अप्रोच देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे. पहले तो आप मान के चलिए कि 10 मार्कर है. 10 मार्कर में 150 वर्ड्स ही लिखना है. 2 पेजेस आपको मिलेंगे. आई होप सम ऑफ यू मस्ट हैव गिवन मेंस. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ मेंस? है ना, अच्छा ठीक है, वेरी फ्यू. देखिए, यू आर गोइंग टू गेट 2 शीट्स, 150 मार्कर्स, 150 वर्ड्स. ऐसे सिचुएशन में आपको हर चीज नहीं लिखना है. अच्छा आंसर, अच्छा जनरल नेचर ऑफ क्वेश्चन के साथ डिफिकल्टी ये है कि it becomes more difficult for a person to write a refined answer in comparison to others. So how your answer is going to be better than the other person? You have to make your answers replete with case laws, with facts, with data, with context, with case studies. अगर ये आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और अगर आप जनरल नेचर के आंसर्स लिखेंगे तो मान के चलिए कि जितने भी लोग हैं 5, 4, 3 इसी रेंज में नंबर आएगा. द मोमेंट यू आर गोइंग टू राइट डेटा, यू आर गोइंग टू इमीडिएटली जंप टू 6, 7, है ना. तो देख लेते हैं हम लोग. अब जो भी बंदा जिसको नहीं भी पता है वो सबसे पहले क्या बात करेगा भाई, सबको ये लिखेगा आर्टिकल 39A टॉक्स अबाउट, है ना, फ्री लीगल एड, ये सारी चीजें तो लिखेगा. बट आगे वो क्या लिखेगा, हो सकता है उसको एग्जैक्ट आंसर्स ना पता हो. तो पहले आप अप्रोच में लिखेंगे, ब्रीफली आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये फ्री लीगल एड क्या है इंडिया में और ये किस पर्टिकुलर सेक्शन में, किस पर्टिकुलर पार्ट में इट इज मेंशन. यू गोइंग टू मेंशन दैट, है ना, इन विच पर्टिकुलर आर्टिकल दिस पर्टिकुलर थिंग इज मेंशन. वी नो दैट आर्टिकल 31 टॉक्स अबाउट इट. यू गोइंग टू टॉक अबाउट पार्ट 4. यू गोइंग टू टॉक अबाउट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. यू गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स लाइक डीपीएसपी. ये सारे कीवर्ड्स आप ऐड करेंगे अपने आंसर्स में. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी कीवर्ड्स है ना, यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस देम इन योर आंसर्स. दैट इज फर्स्ट थिंग. दैट इज हाउ योर इंट्रोडक्शन इज गोइंग टू लुक लाइक. एंड देन यू आर गोइंग टू स्विच टू लाइक हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड इन इंडिया. मान लो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, बुक्स में मेंशन नहीं होता है यूजुअली, कॉमन सेंस से आप मेंस के बहुत सारे सवाल को निकालते हैं, है ना. तो यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम और आप ये बताएंगे कि नालसा किस तरीके से इनके लिए डिफरेंटली प्ले कर रहा है. तो अगर हम लोग देखें तो इंट्रोडक्शन में आप ये लिखेंगे कि फ्री लीगल एड इज अ प्रोविजन ऑफ लीगल सर्विसेज जो कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दिया जाता है विदाउट एनी चार्ज और एट अ नॉमिनल कॉस्ट. थोड़ा एक नॉमिनल कॉस्ट, क्योंकि आप किसको हेल्प कर रहे हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो इकोनॉमिकली या सोशली इतने साउंड नहीं है. ठीक है, तो कोई भी चीज फ्री मत लिख दीजिएगा कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर नहीं भी समझ में आए तो एक नॉमिनल चार्ज लिख दीजिए. द पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग राइट इज हाई. ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं कि इट इंपोजेस एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट. स्टेट पे ऑब्लिगेशन होता है कि वो जस्टिस के लिए सारे सिटीजन्स को ये फ्री लीगल एड दे. तो क्यों दे, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट हैज बीन ऑन राइज. ठीक है, अब सोचिए मैं एक लिस्ट ऑफ पीपल आपको दे रहा हूं. इट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू कि आप हर चीज जाने, बट टिपिकली एक मेंस लिखने वाले बंदे को थोड़ा सा इंक्विजिटिवनेस होना चाहिए और थोड़ा सा उसको गूगल करके चीजों के आंसर्स लिखने चाहिए कि फॉर ऑल मतलब कौन. तो देखिए, somebody who is mentally ill or otherwise disabled person, a victim of mass disaster, an industrial worker, a person in custody,
under the Immoral Traffic Prevention Act, juvenile homes under the Juvenile Justice Act, a person with an annual income below a certain amount, जो कि usually 5 लाख रुपए से कम जिसका है, these are the people. इसके अलावा आप देखिए, हम लोग देखते हैं कि members of scheduled caste, scheduled tribes, ये section 12 में mention है. It is written in the law कि कौन कौन exactly आते हैं, पर worst case scenario बता रहा हूं, आपको नहीं भी पता है तो आप ये लिख सकते हैं, scheduled caste, scheduled tribe, somebody who is a victim of human trafficking, है ना, a woman or a child who are in the jail, है ना, you can talk about mentally ill people, but it's not very difficult. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं precisely आपको सब लिखना है. तो this covers your first aspect of the question. Now comes the second aspect कि नालसा क्या रोल प्ले कर रहा है. It is not mentioned in Lakshmikant and even in newspapers. आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा उसको कोई कीनली रीड नहीं करता है, लेकिन मैंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि ये नालसा क्या कर रहा है, फ्री लीगल एड कर रहा है. केस लॉस कौन कौन से हैं? हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार. ये एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है जहां पर बोला जाता है कि ये सारे डिलेज की वजह से, डिलेज इसलिए होते हैं क्योंकि पीपल आर अनेबल टू हायर एडवोकेट टू डिफेंड देम. एक केस लॉ लिखा, उसके नीचे एक पॉइंट लिख दिया कि भाई हुसैन आरा खातून में ये सारी चीजें, ठीक है. दूसरा स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दर्शना देवी. इसमें ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि नो पुअर शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द जस्टिस मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ द कोर्ट फी. तो देखिए, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दर्शना देवी. थर्ड केस खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जस्टिस भागवती कहते हैं कि ये मैंडेटरी है सेशन जजेस के लिए कि वो इन्फॉर्म करे लोगों को उनके राइट्स के बारे में, इफ एनी सच पर्सन इज अनेबल टू हायर एन एडवोकेट. सी, आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप पूरी चीज को देखें, पर एक ब्रॉडर पिक्चर अगर आप बना लेते हैं, सो यू आर इन अ पोजीशन टू नो. एंड लास्ट इज शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. So these are the 5 important case laws that talk about नालसा, है ना. ऐसे बहुत सारे केसेस हैं. अब इश्यूज क्या क्या है इनके. टिपिकली क्या होना चाहिए कि जब भी आप नालसा वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट एनी टॉपिक, यू शुड हैव एटलीस्ट 3 पेजेस का नोट्स विथ यू. इन दोस 3 पेजेस you should be mentioning all the case laws. Even if it is not mentioned in the book, you should be going and googling it up and finding it out, है ना. जो भी पढ़ रहे हो आप, उसका अगर सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, सोशल इश्यूज से जुड़ा हुआ मामला है, लीगल मैटर से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसका सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, जैसे जुडिशियरी के बारे में पढ़ रहे हो आप, you should be thinking about how application of technology in the judiciary is a game changer, how emerging technologies like AI, machine learning is bringing about change in judiciary. And we're going to see it in the subsequent discussion, maybe tomorrow, that you are going to have, that previous year questions साफ साफ आपको एक पैटर्न देता है. ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, we'll see कि जुडिशियरी का क्या मैटर है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का क्या मैटर्स है. वी आर गोइंग टू सी ऑल दैट, एंड इट इज एविडेंट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको हिंट देता है कि यूपीएससी शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो आप देखते हैं ना, इनके इश्यूज क्या है कि जो सर्विसेज दिया जाता है वो बहुत ही निम्न स्तर का होता है. इट इज सॉर्ट ऑफ अ सब स्टैंडर्ड. व्हाई? बिकॉज द मनी रिम्यूनरेशन इंसेंटिव इज नॉट टू हाई, एंड सो लोग नहीं चाहते हैं फ्री में जाकर के हेल्प करना. क्यों करें हेल्प, है ना. सो वी फाइंड दैट 22, ये बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. 22.6% of the beneficiaries responded that they won't opt for free legal aid services for the second time. They won't be going for it the second time. और कुछ लोग क्या कहते हैं, 75% of the beneficiaries responded that they opted for free legal services because they had no means and resources to hire a paid private practitioner, है ना. और अगर आप देखिएगा, 56% of these legal aid counsel spend an average of 1 to 10 hours per week. यानी 7 दिनों में 1 से 10 घंटे के बीच में, यानी दिन में 1 घंटा भी स्पेंड नहीं करते हैं. कहां? अपने केसेस में. क्यों? बिकॉज ये ज्यादातर जो है वो स्पेंड करना चाहते हैं प्राइवेट केसेस में. ऑन एन एवरेज 20 hours and above per week is spent on private cases. So these are those people who do not get monetary benefit out of these legal cases that they are obligated to serve because these are impaneled lawyers, है ना. These are impaneled. अब incentive है नहीं तो why would they be serving the poor?
So we find that the quality of service that is being given out to the people on whom the state is having an obligation, and actually 39A comes under DPSP. So we find that iska jo outcome hai na, it's not serving the purpose for which it was placed in the very first place. ठीक है? But what are some of the roles? अब it's easy to understand. Roles क्या है भाई? Legal awareness create करना, लोगों तक जाना, उनको बताना कि आपके क्या क्या rights हैं. भाई ये legal awareness programs, legal literacy, monitor and evaluate the implementation of legal services to frame effective and economical schemes for legal services. तो यही सारे पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे और इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ऑर्गेनाइजिंग लोक अदालत, ऑर्गेनाइजिंग पैरा लीगल वॉलंटियर्स. अगर आप लॉ कॉलेज में, अगर आप में से किसी ने भी लॉ करा होगा तो आप देखते होंगे कि सेकंड थर्ड ईयर में प्राइमरीली आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट ग्रेजुएशन, यू आर एक्सपेक्टेड टू सर्व एज अ पैरा लीगल वॉलंटियर. लीगल वॉलंटियर के तौर पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू गो टू दो सबर्ब्स ऑफ दिल्ली, इफ यू आर स्टडीइंग फ्रॉम दिल्ली, to go and meet the people, try to have conversation with these poor people who are sitting out there and try to understand what exactly their problems are. ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि भाई आई शुड बी इमीडिएटली सिटिंग इन अ चेंबर ऑफ सम बिग लॉयर. So who is exactly going to work for those people whose human rights are getting impacted on a daily basis? है ना? So NALSA is doing that particular role. That is why NALSA has been put into place. ठीक है? So लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करवाना, वॉलंटियर्स को ऑर्गेनाइज करवाना, अलग अलग तरीके के स्कीम्स बनाना, ठीक है, ये सब हाँ, दे आर नॉट पैरालीगल्स, दे आर नॉट अलाउड, दे पैरानॉइड्स नहीं, पैरालीगल है ना. दे आर नॉट अलाउड फॉर लीगल प्रैक्टिस बट दे एसोसिएट देमसेल्व्स विद अ लॉयर एंड हेल्प देम कैरी आउट रिसर्च, केस स्टडीज को रीड करके बताना. ठीक है, गेटिंग द पॉइंट. तो ये आपका नालसा करता है. तो अगर हम लोग फिर से इस सवाल को एक बार रीड करें, इफ वी रीड दिस क्वेश्चन अगेन, हु आर इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड. ठीक है, एंड असेस द रोल ऑफ द नालसा इन रेंडरिंग फ्री लीगल एड इन इंडिया. ठीक है, I think most of you are in a position to write a decent answer. Even if you did not have an idea about it, you could have written a decent answer pertaining to this NALSA. ठीक है, और हम लोग subsequent classes में कल के discussion में भी देखेंगे previous year questions का pattern, gender justice के सारे questions repeated हैं. See, I'm giving a very objective claim over here that 8 questions were directly from previous year questions. And I'm going to show it in terms of the questions that I'm going to discuss. Of course, ma'am is going to discuss 10, 11 questions and I'm going to discuss 9 questions. 8 questions were from previous year questions directly. And 10 questions were in the form of modified previous year questions. And I'm going to show it to you guys in the next class. Jahan par how you can predict the question based on last 40 years, 30 years का question का एक pattern के basis पर how you can predict that what exactly is the question. And if anybody has attended the crash course that I conducted, and a lot many questions have come. See, most of the teachers, they claim all that. I avoid doing such things, but then we are going to have a look, a very objective and empirical analysis of how the questions came directly from previous year questions. So most of the students, they don't go through previous year questions, and I don't believe in dictating things. भाई क्योंकि होता क्या है, it's a wild goose chase. अगर मैं अभी डिक्टेट करवा दूंगा इसके बारे में, नेक्स्ट ईयर दिस क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू कम. बट इफ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ यूपीएससी इज फॉलोइंग अ सर्टेन पैटर्न, मे बी यू कैन प्रेडिक्ट द क्वेश्चन. एंड वंस यू आर इन अ पोजीशन टू प्रेडिक्ट द क्वेश्चन, यू आर स्टेप्स अहेड ऑफ द पर्सन हु इज जस्ट गोइंग अबाउट राइटिंग आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप ऐसे टॉपिक्स को, जुडिशियरी को जब भी आप पढ़ें, पुलिस, कोर्ट्स यानी जुडिशियरी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, है ना, और क्या केसेस, जो भी, इन सबको जोड़ करके पढ़ें. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा, प्रिजन्स, पुलिस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. तभी आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी. और अभी हम लोग देखते हैं कि सारे रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, आईपीसी और सीआरपीसी, इन सब चीजों में जो चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है. तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अभी जैसे एक टॉपिक आ गया ई गवर्नेंस. ई गवर्नेंस पे एक सवाल है विच वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट क्लास.
तो क्या आप इस ई गवर्नेंस को जुडिशरी के साथ जोड़ के नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि जुडिशरी के अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, एंड व्हेन यू आर स्टडीइंग एनी टॉपिक यू हैव टू स्टडी इट थीमेटिकली, है ना? तो यू हैव टू स्टडी नालसा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लोक अदालत, जुडिशरीज, द केसेस एंड एवरीथिंग, ठीक है? सो दैट इज वन क्वेश्चन दैट वी डिस्कस, ठीक है? अब हाँ प्लीज, क्या? हाँ, जो भी शॉर्ट कमिंग्स है, इश्यूज एंड चैलेंजेस में, यू कैन गिव द सजेशंस वे फॉरवर्ड। यू आर गोइंग टू राइट द वे फॉरवर्ड की व्हाट वुड बी डन। फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन ओवर हियर वे फॉरवर्ड क्या है, देख लीजिए। जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं यू आर गोइंग टू मेंशन ऑल दैट वे फॉरवर्ड। इनका फुल टाइम एम्पैनलमेंट करो, इनको ऑनरेरियम दो, इनको रिम्यूनरेशन दो, यही तो प्रॉब्लम्स है इनके। दैट इज हाउ योर 10 मार्कर इज गोइंग टू लुक, ठीक है? आई नो दैट यू गाइस आर टायर्ड, ठीक है? चलो नेक्स्ट डे हम लोग करते हैं इसको फिर, ठीक है? ठीक है इसका